In 2024, the Lord told me, go enlarge. 2024 के लिए परमेश्वर ने कहा कि जाओ और बढ़ते जाओ। Go and enlarge. जाओ और बढ़ते जाओ। Go and enlarge my territory. जाओ और मेरी सीमाओं को बढ़ाओ। This is in God's heart for 2024, for you and for me. 2024 में आपके और मेरे लिए यही तो परमेश्वर का हृदय है। He showed me Revelation 3:8-10. उसने मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 8 से 10 बताया। The Lord said, प्रभु ये कहते हैं, I know your deeds. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। See, I have placed before you an open door that no one can shut. देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। I know that you have little strength, मैं जानता हूँ कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, yet you have kept my word, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है and you have not denied my name. और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। And in verse 9 he says, और वचन 9 में वो कहते हैं, I will make those who are of Satan, who are liars, I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. देख, मैं शैतान के उन लोगों को जो कि झूठ बोलते हैं, देख ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान ले कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। This is an abridged version relevant to us. ये तो निश्चय एक ऐसा वचन है जो हमारे लिए बहुत ही व्यवहारिक है। And verse 10. और वचन 10 कहता है, Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test the inhabitants of the earth. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। Yes, God is going to give His people who trust Him an open door which no person on earth can shut. परमेश्वर उस पर भरोसा करने वाले लोगों के लिए खुला द्वार देंगे जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। Secondly, दूसरी बात, He is going to make all the liars, the agents of Satan, to come and fall at the feet of God's people saying, God loves you, God loves you. और वो ऐसे करेंगे कि शैतान के जो लोग जो झूठ बोलते हैं उन सभी लोगों को परमेश्वर के लोगों के पैरों तले वो लेकर आएंगे और वो लोग कहेंगे कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तुमसे प्रेम करता है। Thirdly, a great affliction, an hour of trial is going to come upon the whole world to test the inhabitants of the earth. और तीसरी बात ये है कि पूरी पृथ्वी के रहने वालों को परखने के लिए पूरे संसार के ऊपर में परीक्षा का बड़ा समय आने वाला है। But God will keep His people safely because you have endured patiently, trusting in Him in all your hour of trials in the past. लेकिन भूतकाल में आपके सारी परीक्षा के समय में आपने पूरी रीति से उस पर भरोसा रखा, इसीलिए परमेश्वर आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। And now I will speak specifically as to what the Lord showed me. और मैं खास करके भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया। In 2024, 2024 में every bondage that has been binding God's people from moving forward shall be broken. हर एक बंधन जो परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने से रोकता था वो तोड़ दिया जाएगा। Of course, an open door will be given. हमें अवश्य ही खुला द्वार दिया जाएगा। Secondly, दूसरी बात, the gifts of God's Holy Spirit shall operate mightily in the ministry of those who labor in delivering the people from the oppressions of the dark and evil forces. पवित्र आत्मा के वरदान उन लोगों की सेवकाई में प्रकट होंगे जो बड़ी मेहनत करते हैं ताकि परमेश्वर के लोगों को बुरे और अंधकार की शक्तियों से छुड़ाएं। God will do signs, wonders, miracles through the gifts of the Holy Spirit, through the ministry of those who deliver people from the oppressions of the evil one. परमेश्वर उन लोगों की सेवकाई में चिन्ह चमत्कार करेंगे जो कि बुरे और अंधकार की सामर्थ से लोगों को छुड़ाने के लिए मदद करते हैं, सेवकाई करते हैं। Thirdly, the Lord told me, तीसरी बात प्रभु ने मुझसे कहा, never again shall my people suffer bondage and affliction. कि मेरे लोग फिर से कभी बंधन और क्लेश को नहीं सहेंगे। As long as they go and deliver the other people from their bondages, I will never allow my people to suffer bondage and affliction
by themselves. और जब तक कि मेरे लोग जाकर दूसरे लोगों को बंधन में से छुड़ाएंगे, मैं कभी अपने लोगों को बंधन में आने नहीं दूंगा। Fourthly, चौथी बात, from now on I shall make my people enjoy serenity and peace. आज से आगे मैं अपने लोगों को मेरी देखभाल और शांति का आनंद लेने दूंगा। The reward for all their labor for my kingdom's sake thus far shall now be enjoyed by them. और जो अब तक उन्होंने मेरे राज्य के लिए मेहनत की है, उसका वो आनंद उठाने पाएंगे। The reward for your faithful labor in the midst of all the persecution and affliction, my dear friend, is coming in 2024. मेरे प्यारे दोस्तों, सारे क्लेश में आपने जो विश्वास योग्य रीति से वहां पर मेहनत की है, उसका प्रतिफल 2024 में आ रहा है। The reward is peace and serenity. और इसका प्रतिफल तो शांति और देखभाल है। And fifthly, और पांचवी बात, Jesus says, यीशु ने कहा, my grace shall be sufficient for my people who have endured pain and suffered humiliation for my sake. कि मेरा जो अनुग्रह है ये तो मेरे लोगों के लिए काफी है, बहुत है, जो मेरे कारण अपमान और दर्द को सहते हैं। Peace shall now engulf their home and rest shall govern their lives. अब उनके घरों के ऊपर में शांति राज करेगी और विश्राम उनके जीवन पर राज करेगा। And the Lord says, my purpose for which I have called my people shall be fulfilled in all realms of their callings and in their families. परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरे उद्देश्य जो भी मेरे लोग बुलाए गए हैं, उनकी बुलाहट में और उनके परिवार में मेरे उद्देश्य पूरे होंगे। The purpose for which God called you will be accomplished. जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो पूरा किया जाएगा। Your waiting is over. आपका राह देखने का समय खत्म हो चुका है। And seventhly, और सातवीं बात, God says, I will enlarge the territories of my servants and make them be established in the land. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने सेवकों का जो सीमा है, जो उसका वास्तान है, उसे मैं स्थापित करूंगा और उनकी जमीन को मैं स्थापित करूंगा। They shall have far-reaching results across the land and across the world. और उनका जो परिणाम है वो तो बहुत दूर तक होंगे, उनके देश में और यहाँ तक कि पूरे संसार में। And eighthly, और आठवीं बात, no man shall be able to resist or stand against my servants who profess my name. जो मेरे दास मेरे नाम का अंगीकार करते हैं, कोई भी उनका सामना नहीं कर पाएगा और कोई भी उनके विरुद्ध में खड़े नहीं रह पाएगा। Yes, God will put up a divine resistance and open doors will be there. No man can resist it. No person can resist it. परमेश्वर वहां पर खुली रीति से रहेंगे और उनके लिए खुले द्वार रखेंगे और कोई भी मनुष्य उनका सामना नहीं कर पाएगा। And number 9. और नंबर 9, The Lord says, I will now make my hand that governs to come upon the nation. और प्रभु कहते हैं मेरा हाथ जो देखभाल करता है वो तो देशों के ऊपर आएगा। My hand shall deliver those who are oppressed. और जो लोग सताए जाते हैं मेरा हाथ उन्हें छुड़ाएगा। My hand shall give them freedom to rise above all their oppressors. और मेरा हाथ उन्हें वो आजादी और स्वतंत्रता देगा कि अपने सारे सताने वालों के ऊपर में वो उठे। All the people in the nation shall now begin to enjoy my peace. और देश के देशों के सारे लोग मेरी शांति का आनंद उठाने पाएंगे। This is about the nation and the hand of the Lord that governs the land. और ये तो उस देश के बारे में और परमेश्वर का हाथ जो उस देश के ऊपर में देखभाल करता है। And number 10. और नंबर 10, The Lord says, I will restore my goodness to the nation. प्रभु ये कहते हैं कि मैं अपनी भलाई देशों को दूंगा। This shall come true in your life और ये आपके जीवन में पूरा होगा and in the life of your nation. और आपके देशों के जीवन में ये पूरा होगा। And number 11. और नंबर 11, My gracious power shall come upon the children of my people across the land. और पूरे देश में मेरे जो लोग हैं उनकी संतानों के ऊपर मेरी अनुग्रह की सामर्थ आएगी। And shall make the children of my people to prophesy and rise to greater heights to accomplish greater things in the secular realm. और मैं अपने संतानों को इतना ऊंचे ऊंचे पर उठाऊंगा कि वो यहाँ तक कि सांसारिक बातों में भी, सांसारिक क्षेत्रों में भी महान बातों में उपलब्धियां पाएंगी। With the prophetic anointing, your children will rise up
to great heights even in the secular realm like Daniel's and Joseph's. और ये निश्चय भविष्यवाणी के अभिषेक के कारण आपकी संतान जो आपके जो बच्चे हैं सांसारिक क्षेत्र में सांसारिक कामों में भी महान ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे जैसे कि दानियल पहुंचा। And finally, in this year 2024, और अंत में ये साल 2024 the Lord says, I will adorn my people who are called by my name with accolades in high places. मैं ऐसा करूंगा कि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं वो ऊंचे ऊंचे स्थान पर अलंकृत हो जाएंगे। God is going to give accolades to those who carry his name. जो उसके नाम को लेकर चलते हैं परमेश्वर उन्हें अलंकृत करेंगे। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं, He will do justice. वो आपके लिए न्याय करेंगे। Shall we pray for this prophecy to be fulfilled in our lives? आइए हम प्रार्थना करें कि ये भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हो जाए, In the nation, देश में पूरी हो जाए, the lives of our children, हमारे बच्चों के जीवन में पूरी हो जाए and in the ministry. और सेवकाई में पूरी हो जाए। God says, enlarge परमेश्वर कहते हैं कि बढ़ो and enlarge my kingdom. और मेरे राज्य को बढ़ाओ। I have set an open door before you. मैंने तुम्हारे सामने खुला द्वार रखा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। Thank you for speaking to us. प्रभु धन्यवाद कि आपने हमसे बातें की हैं। We pray that this word that you have spoken, which I have delivered, would be watched over and performed by the mighty power of the Holy Spirit. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये वचन जो अभी बताया गया है ये तो निश्चय से देखा जाएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये पूरा किया जाएगा। Lord, let it go across the hearts of everyone in the nation, Lord. और प्रभु ये इस देश के हर एक एक व्यक्ति के हृदय में पहुंच जाए। Let it go into the realm of power. और ये तो सामर्थ के क्षेत्र में चले जाए। Let it go to destroy the works of the devil. और ये शैतान के कामों को नाश करने के लिए चले जाए। Let it go to bring peace and serenity in the hearts, minds and lives of your people. आपके लोगों के मन में ये देखभाल और शांति लाने के लिए चली जाए। Open the doors, Lord. प्रभु द्वार खोल दीजिए Break the bondages, Lord. और बंधनों को तोड़ दीजिए। Make your people to be signs and wonders with miracles following. प्रभु आपके लोगों को ऐसे करके चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म उनके पीछे पीछे होती जाए। Let everyone acknowledge that you love your people, Lord. और हर एक व्यक्ति इस बात को जान ले कि आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं। And let your people be honored for all the misery they have gone through, Lord. आपके लोग जिन सारी मुसीबतों में से और बुरी बातों में से होकर गए उनके लिए आपके लोगों का आदर किया जाए Let their children be blessed. और इनकी संतानें आशीषित हो। Let your hand come upon the nation. आपका हाथ देशों के ऊपर आ जाए। Your governance be established, Lord, in peace and serenity. प्रभु आपका शासन निश्चय ही देखभाल और शांति में स्थापित किया जाए। Power of every oppression be broken in Jesus' name. हर एक यातना और क्लेश की सामर्थ तोड़ दी जाए यीशु के नाम में। Lord, as the affliction and darkness comes upon the people of the world, protect your people called by your name from every evil because of their patient endurance. और प्रभु हर एक व्यक्ति जो आपके नाम का पुकार जाते हैं, जो क्लेश में से होकर जाते हैं, उनकी मदद कीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए क्योंकि उन्होंने आप में धीरज रखा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, You will perfect this. आप इन्हें सिद्ध बनाएंगे। We pray these promises and prophecies to fulfillment in the name of Jesus. हम प्रार्थना करते हैं कि ये भविष्यवाणी और ये वचन जो है यीशु के नाम में पूरे हो जाएं। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष। Have a wonderful year 2024. और 2024 ये साल आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो।